Welcome to Think Like UPSC. Stratification and Mobility. Chapter number 5 of paper 1, Sociology is going on. So, what is poverty? So, poverty basically it refers to a social problem, एक तरह की social problem which is often expressed in the term of lack of material resources. जहाँ पे एक इंसान के पास में material resources नहीं होते which require for a minimum standard of life को जीने के लिए उसको जो साधन चाहिए संसाधन चाहिए वो नहीं होते. But what are minimum standard है क्या? इसको हम देखते हैं एंड देयर इज नो एग्रीमेंट इसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है अपॉन दिस एंड हेंस यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ द पॉवर्टी हैज नो कंसेंसस. सो अकॉर्डिंग टू Ruth Lister, you can say in her Poverty 2004 definition of poverty has important implication of political policy and academic discourse. And this way we can say India also have a definition for this, and recent definition poverty from the government have given basically have risen a heckles as critics argue करते हैं इसको. And these definition are exclusionary and don't provide measure of actual poverty. Another contentions अगर हम देखते हैं of the critics is that across the countries poverty is invariably defined in terms of material well-being. तो हम जो मैंने स्टार्टिंग में बोला it is basically on the basis of material well-being. यहाँ एक डेफिनेशन दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं. पॉवर्टी रेफर्स टू अ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट लास्ट लॉन्ग इनफ टू अंडरमाइन द हेल्थ, moral and self-respect of an individual or group of individual. Who said this? W.P. Scott. Now, what are different type of poverty? Poverty here, absolute poverty and relative poverty. Here, when we talk about absolute poverty, it is a kind of poverty जहाँ पर एक state in which individual lacks the resources necessary for सब्सिस्टेंस, मतलब जो उसको बहुत ज़रूरी है वो ही नहीं है उसके पास में. रिलेटिव पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑफ अ रिसोर्सेज व्हेन कंपेयर्ड विद द एट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. इन अदर वर्ड्स you can say their relative standard of living is very low. So here also let's see, for example, let's take an example of globally global parameter पे can be like $1 $1.25 per day. इतनी इनकम एक इंसान की होनी चाहिए, but this suffers from a major weakness as purchasing power की जब हम बात करते हैं, करेंसी एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में भी हैव अ different rates and it addresses only subsistence needs. Relative poverty on the other hand is like argued that poverty is culturally defined and measured in terms of relative deprivation. तो यहाँ पे पीटर टाउनसेंड आते हैं. he says that was one of the he was one of the pioneer of the defining poverty in term of relative deprivation, and which was backed by his extensive field of studies in 1960s से 70s in Britain में करी थी. and other measures उनके थे like calories की intake जो हम लेते हैं have also been adopted, and despite varying approaches this is one of the commonly agreed that poverty is one of the fundamental cause of exclusion. ये exclusion का poverty fundamental cause है. किसका? एक्सक्लूजन का. ठीक है. सो यू कैन मेजर थ्योरीज है हमारे टू डिस्क्राइब दिस पॉवर्टी लाइक blame the poor view, blame the poor system, or you can say the cultural perspective, the poverty as a positive feedback system, as a vicious cycle है. एक poverty
क्या है, एक सिस्टम की विशेष साइकिल है, स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरीज हैं हमारे पास, डायलेक्टिकल अप्रोचेस हैं, पॉवर्टी एंड पावर थीसिस हैं, फेमिनिस्ट के व्यू डिफरेंट है। जैसे कि फेमिनिस्ट के व्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हो जाता है पॉवर्टी फॉर वुमेन इज ऑफन हिडन बिहाइंड द स्टडी ऑफ पॉवर्टी एज अ हाउस होल्ड फिनोमिनन अकॉर्डिंग टू Rusupini in his article they have said that longitudinal research in social science in 2000, it is well known that employment rate of women are lower than that of men and they often land into the low paid jobs। जैसे कि हमारे घरों में जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होती हैं वो नॉर्मली ज़्यादातर वुमेन्स ही होती हैं। एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट पिंक कॉलर जॉब्स, दे आर ऑल्सो बीइंग डन बाय, दीज ऑल जॉब्स आर ऑल्सो बीइंग डन बाय वुमेन एंड दे आर पेड अंडर and they are paid very low, around 12 to 15 or 18 or 18 is max, इतना तो मैक्स ही दे रहा होता है कोई। तो द पॉइंट इज डिपेंडेंसी थ्योरी हमारी अगली बोलती है, वो बोलती है एंड्रे गोंडर, ही सेज दैट ईस्ट इज द रिजल्ट, बेसिकली पॉवर्टी इन द ईस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ पर्सपेक्टिव। तो एक प्रॉस्पेरिटी का है इन द वेस्ट एंड वेस्टर्न कंट्रीज का एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा है, कॉलोनियल रूल में इम्प्रोवाइज्ड कर दिया जिसकी वजह से दीज कंट्रीज एंड सिमिलरली तो इस तरह से पॉवर्टी चलती रही। तो रूथ लिस्टर जो है हमारी, वुमेन आर बीइंग basically represented among the poor and she calls it feminization of poverty। and apart from apparent statistical poverty, or you can say women suffer from many more form of deprivation and hence suffer from some sort of hidden poverty as well। Therefore resources of family are not equitably shared within the family also। Like if you talk about the father's wealth is not being divided into girl child and a boy child। basically brothers and sisters में हम equally divide नहीं करते हैं, majority fathers, ठीक है। और ये कड़वा सच है, रियलिटी है, नॉट ओनली इन इंडिया, इन आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। सो चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्रीवेशन। व्हाट इज डेप्रीवेशन? तो बेसिकली हियर इज सोशियोलॉजिकल एनालिसिस डिफाइन करते हैं डेप्रीवेशन एक ब्रॉडली एज अ इनइक्वालिटी of access to social goods। it includes poverty and a wider form of disadvantage। ये उसी का पार्ट है, सब पार्ट है, and it refers to the denial of access to resources required for self development and fulfillment of basic necessities। तो इस एग्जाम्पल से, इस डायग्राम से we can come to know। तो resources can be social, economic, cultural, basic necessity vary from one culture to another। ठीक है। अब टाइप ऑफ डेप्रीवेशंस क्या क्या होते हैं? अब डेप्रीवेशंस में जैसे कि आप देखो मटेरियल डेप्रीवेशन इन ईयू की अगर बात करते हैं, टू पे देयर रेंट, मॉर्टगेज और यूटिलिटी बिल्स, टू पे देयर होम adequately warm, to face unexpected expenses, to eat meat and or protein regularly, to go on holidays, own a television set, washing machine, a car and telephone, one may face deprivation despite relative good economic condition। People in war areas, torn areas like West Asia, or you can say some African countries, suffer from multiple deprivation in the form of non-access to health, education, sanitation, housing। Suppose rural area की इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में भी अगर आप विलेज एरिया में, वो भी ऐसे विलेज एरिया में जाते हैं बिहार के, झारखंड के एकदम अंडर, बहुत ही डीप में अगर विलेज में जाते हैं, इवन यूपी के भी कुछ अंडर द, मतलब काफ़ी अंदर की साइड में अगर विलेज में जाओगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ स्कूल्स भी नहीं है। बेसिक स्कूल जो होते हैं आपके टिल 12 तक के, वो स्कूल्स भी नहीं है। आप सोचो वहाँ के बच्चों की कंडीशन क्या होगी। पानी की सुविधाएं ही नहीं है। आज भी हमारी कंट्री में मेजॉरिटी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर पीने योग्य पानी तक नहीं है। दे आर लाइक हैंडपम्प वाला पानी पीते हैं मेजॉरिटी। आप गाँव में जाओगे तो मेजॉरिटी वही होता है। तो वो क्या है, पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो अ deprivation। रिसोर्सेज कैन बी, इस तरह से हम बोल सकते हैं, रिसोर्सेज कैन बी सोशल, इकोनॉमिक, cultural and basic necessity vary from one culture
टू अनदर। तो अब्सोल्यूट डेप्रिवेशन जब हम बात करते हैं तो अब्सोल्यूट डेप्रिवेशन की जब वो रेफर कर रहे हैं तो अब्सोल्यूट डेप्रिवेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे इवन वन डजंट हैव इवन अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ लाइक फूड, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ, जो मैंने अभी बताया था पीछे। तो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, मार्जिनलाइजेशन एंड हंगर आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है। एंड रॉबर्ट मर्टन है, तो ये हमारे थिंकर हैं, ऑल्सो मेंशन दैट रिलेटिव डेप्रिवेशन एज एन अनदर फॉर्म ऑफ डेप्रिवेशन एंड ही सेड डिस्पाइट एब्सोल्यूट प्रोग्रेस इन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में एब्सोल्युटली प्रोग्रेस हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनइक्वालिटीज रिलेटिव deprivation always remains there, and Marxists attribute deprivation to unequal nature of society here, which is marked by unequal control over forces of production. तो relative deprivation refers to the deprivation experienced when individual compare themselves with other, like रूरल एरिया का बच्चा हमसे कंपेयर, दिल्ली में रहने वाले या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले बच्चों से उसको कंपेयर करता है, तो वहाँ उसके साथ में रिलेटिव डेप्रिवेशन हमें देखने को मिलता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु लाइक समथिंग कंपेयर्ड देमसेल्व्स विद दोज हु हैव इट एंड इन सो डूइंग फील अ सेंस ऑफ deprivation. Now, what are theories of stratification? Here, structural functionalist view क्या है वो हम देखेंगे सारे, and let's see. Now here, structure functionalist view करते हैं that social stratification in society exists because it serves an important role in functioning of the society. तो different strata हैं are created due to the differential capacity and the role and their ability to perform different role. तो functionalist इसको एग्जिस्टेंस को क्या देखते हैं वेरियस स्ट्रेटा फॉर्म पे इन टर्म्स ऑफ देयर इंडिपेंडेंसी, कॉपरेशन, सर्विंग द फंक्शन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। तो पार्सन यहाँ पे इस तरह से व्यू करते हैं, पार्सन, डेविस मोरे, डब्ल्यूएल वार्नर में इस चीज़ों को, कंट्रीब्यूशंस को पूरा डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सपेक्टिव से पूरा उसको डिफाइन करेंगे। So now let's see Parson क्या बोलते हैं। According to Parson, so every society is based on consensus in terms of norms and value. ये हमने जब Parson कवर करा था उसमें हमने करा था, वहीं से हमने सीधा उठाया है, बोला है कि according to Parson, every society is based upon consensus in terms of norms and values. ठीक है। अब ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, एगिटेरियन सोसाइटी का कैसे है, सोशल इनइक्वालिटी कैसे है, सोशल ग्रुप्स का कैसे है, सोशल जब हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ देखते हैं, टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे, स्लेवरी है, कास्ट है, जेंडर है, रेसिज्म है, क्लास है। ठीक है। अब सोशल डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन, सोशल इनइक्वालिटी है, सोशल डेप्रिवेशन है, पॉवर्टी है, सोशल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, लाइक कॉमन आइडेंटिटी, शेयर कॉमन नॉर्म्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यू, कॉमन सब कल्चर स्टैंड्स टू डेवलप एंड सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। जब हम सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हैं, लाइक क्रिएटेड इनइक्वालिटीज, सोशली क्रिएटेड इनइक्वालिटीज़ हैं, सोशल ग्रुप्स जो हैं आपके विच आर रैंक्ड अबव the others, and social inequalities created inequality in which a particular group है जो place होता है hierarchical mover like wealth mover and prestige. No social prestige है egalitarian society में, no social status है, equal distribution of wealth है, ये तो बहुत ही कम, यहाँ तो है ही नहीं, भूल जाओ इसको, egalitarian society तो exist नहीं करती है। egalitarian society is a myth, यहाँ आगे बोला है ना, egalitarian society is a myth. From simplest to the most complex have some form of social inequality. Social stratification concerned with unequal distribution of power, prestige, of wealth. Social hierarchies क्या है, ranking of the position of authority conceptualized in टू वेज। कैसे, सबसे पहले कार्ल मार्क्स को देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने यहाँ की हायरार्कीज बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, क्लास पोजीशन उसकी बात करते हैं, वो हैव्स एंड हैव्स नॉट की बात करते हैं, और ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, जहाँ वो बोलते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, एशियाटिक मास्टर एंड स्लेव्स है की जो बात है वहाँ पे वो चलती हैं, एशियाटिक मोड्स हैं, मास्टर्स हैं, फ्यूडल फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन है, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्व्स वो
सुपीरियर होते हैं, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटलिस्ट वर्कर्स एंड सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, स्टेट ओनरशिप एंड ओनरशिप बाय द कॉपरेटिव्स हैं, इमाइल डेथहाइम की जब बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर है, यहाँ पर फंक्शनली डिफ्रेंशिएटेड टास्क हैं, रोल्स हैं, रिलेशनशिप हैं, बिहेवियर्स हैं उनके, देयर एंड प्रिस्क्राइब्ड बेसिकली. सो एंड हियर ब्यूरोक्रेसी है, लीगल रेशनल अथॉरिटी है एंड हियरकी है. ठीक है, दिस ऑल. तो उसके बाद में अगर हम उसके बाद आगे अगर हम जाते हैं तो अभी हम देखते हैं कि बेसिकली इनका अगर हम इसको अभी वी हैव डन ओनली दिस मच. तो अभी डेविस मॉरे और जो मैं बोली थी लाइक कॉर्ड पार्सन उसको देख लेते हैं. तो डिफरेंट कन्फर्मिटी है and differential rewards and the strata and people, because this is not enough. Karl Marx, Milder, Hyman Weber social stratification में we need more also. ठीक है, अब हम फोर्थ है हमारा बेसिकली पासन. तो पासन की जब हम बात करते हैं तो एवरी सोसाइटी, उन्होंने बोला कि एवरी सोसाइटी इज बेस्ड अपॉन द कंसेंसस इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज. तो द कन्फर्मिटी टू दीज नॉर्म्स is considered desirable and is often rewarded. तो differential conformity है and differential rewards है from strata and society. तो people themselves tend to follow social norms and compare their performance by these norms, and those who perform greater conformity to these norms get the bigger reward and are ranked higher. Another argument जो हमने सुना है पासन के रिगार्डिंग में is that the society has a certain functional prerequisite which needs to be fulfilled. So social stratification helps the fulfillment of these functional prerequisite. According to Parson, stratification is inevitable as value consensus is an internal part of a type of society. तो Parson की जो Parson acknowledge that there is inequality in society, but this is deemed a legitimate as per value norms as a measure of differentiate achievement. Some wield more power, some are like more power, and this is considered legitimate as it is deemed to be a welfare of all. तो critics हमें जो critic argue करते हैं यहाँ पे like which value are more important is not clear. पासन की जो थ्योरी है उसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन सी वैल्यू मोर ज़रूरी है. तो पासन यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं दैट it vary from society to society. For example, in traditional society, religious value may be more important, and in developing countries like India की बात कर लेते हैं तो integration is the main focus on, as such as there is an emphasis on the preservation of traditional value and solidarity. तो जब हम W.L. Warner को करते हैं तो he says that what did he say? He says that the social life of a modern community in 1941, in this he said that emphasize on the social status instead of economic classes. जब हम फिफ्थ में चलते हैं हम करते हैं W.L. Warner. W.L. Warner he says that कि जो आपकी the social life of modern community 1941. ये किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे? ही इज सेइंग सोशल स्ट्रेटा. ठीक है, सोशल स्ट्रेटा क्या है वो आपका इंस्टेड किस पे? इकोनॉमिक क्लास. ठीक है, एंड ही कंसिडर्ड द 3 वेरिएबल्स, नेमली कौन कौन से 3 वेरिएबल उन्होंने कंसिडर करे थे? फर्स्ट वॉज एडुकेशन, सेकेंड वन वॉज आपका हो गया ऑक्यूपेशन, थर्ड वन हो गया एंड इनकम. ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स उन्होंने लिए थे ऑफ
किसके स्टेटस के लिए, स्टडी करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जब इसको स्टडी करने के लिए लेते हैं तो अदर क्राइटेरिया विच डिटरमाइंड स्टेटस आर फ्रेंडशिप, membership of voluntary group and leisure activities. So he gives similar explanation as that person is doing out an explanation differential status. Similarly Davis Morey जो है हमारे thinker, he also says formulated their famed functionalist theory in the form of some principle of social stratification in 1945. So societies need these stratified positions for its proper functioning. Higher rewards होते हैं are attached to the functionally more important positions, and in order to attract talent को attract करने के लिए people are required to have functionally more important important position also required greater investment चाहिए होती है, like skill sets, training on the part of occupier and hence, तो ये हमने देखा ही है, हम जानते ही हैं, like सोसाइटी में रहते हैं, like हायर एजुकेशन के लिए हायर फंड्स चाहिए होते हैं, सेम इज दैट। अब मार्क्स की थ्योरी ऑन स्ट्रैटिफिकेशन बोलती क्या है? मार्क्स की थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बोलती है इन द बिगनिंग देयर वर नो क्लास और द स्ट्रैटिफिकेशन प्रिमिटिव ऑफ कम्युनिज्म, बट लेटर जैसे प्रोडक्शन और सरप्लस एग्रीकल्चर आ जाता, प्राइवेट प्रॉपर्टी केम एंड विच लेड टू द इनइक्वालिटी इन क्लासेस आती है, एंड सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इस तरह से राइज होने लगता है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप and the social group of the forces of production. तो hierarchy is based on relationship of production, जैसे कि मार्क्सिस्ट की आइडेंटिटी टू मेजर स्ट्रेटा इन द सोसाइटी, वन दैट कंट्रोल्स, एक वो जो कंट्रोल करता है द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे बोर्जॉइज हैं जो इनके पास सब कुछ है, और एक होते हैं प्रोलेटेरिएट जिनके पास कुछ नहीं है, दे आर वर्किंग एज अ वर्किंग क्लास, ठीक है वो। Second, that works for the ruling class. From Marxist standpoint, economic power governs political power, and the ruling class derives its power from the ownership and control over फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। हैव्स एंड हैव नॉट की बात करेंगे, जहां पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ऑल स्ट्रेटिफाइड सोसाइटीज जो हैं आर टू मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, जहां पे रूलिंग क्लास को ये हैव्स का नाम देते हैं, एंड सब्जेक्ट क्लास को जो काम करते हैं वो हैव नॉट होते हैं, एंड द रूलिंग क्लास डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से उनके पास में पावर आती है, एंड द रूलिंग क्लास एक्सप्लॉइट करते हैं एंड ऑप्रेस द सब्जेक्ट ऑफ क्लास, एंड द वेरियस इंस्टीट्यूशन हैं जो सोसाइटी के सच एज लीगल एंड द पॉलिटिकल सिस्टम आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास के, ये इंस्ट्रूमेंट है डोमिनेशन एंड सर्व्स टू द फर्दर इट्स इंटरेस्ट के लिए। एज अ रिजल्ट देयर इज अ बेसिक कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरेस्ट बिटवीन द टू क्लासेस। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की जब मार्क्स बात करते हैं, जब हमने मार्क्स को कवर किया था उस टाइम मैंने कराया था, तो मार्क्स बिलीव दैट वेस्टर्न सोसाइटी डेवलप्ड थ्रू फोर मेन इपोस, कम्युनिज्म, एंशियंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। ये आपके रिवाइज, इन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, ठीक है। ये पीछे भी कराया जब कार्ल मार्क्स ने थिंकर, यहाँ पे खोलोगे कार्ल मार्क्स कराया हुआ है, तो कार्ल मार्क्स में आपको ये सारा का सारा क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कंसेंसस, क्लास को सॉलिडेरिटी, ये सारे टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं मार्क्स का बेसिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एज डिस्कस्ड अर्लियर, कार्ल मार्क्स जो है 1818 से 1883 तक पर्सनली सॉ सोसाइटीज इन upheaval, and when the feudal system broke करता है तो mass of peasants were displaced and from their traditional lands and occupation. तो fleeing the cities, they competed for the few अवेलेबल जॉब्स। अगर हम जैसे इंडिया की ही बात करते हैं तो इंडिया के कंटेक्स्ट में जब हम देखते हैं, जिस टाइम ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स ने जब फॉरेस्ट को ऑक्यूपाई किया था, तो फॉरेस्ट में जो रहने वाले हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो शेड्यूल ट्राइब था, ये पहले क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयड था, बट उसके बाद जब इनको वहाँ से निकाल दिया गया तो उसके बाद व्हाट डिड दे ऑल्सो केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट फॉर व्हाट, फॉर जॉब्स, एंड उसके बाद वो मीनियल जॉब्स वगैरह उनको मिलने लगी, उन जॉब्स के सहारे वो अपना वक्त काटने लगे। तो ऑफर्ड ओनली अ pittance for their labor and they dressed in rags, went hungry and slept under bridges and hops। ये हमारे इंडियन पीसन्स की भी सिचुएशन थी कभी, आज भी है, आज भी बहुत गरीबी है, गरीबों की आज भी यही सिचुएशन है। इन कंट्रास्ट द फैक्ट्री ओनर्स बिल्ट मेंशंस
hired servants, and lived in lap of luxury. ठीक है. Seeing this great disparity between the owners and workers, Marx conclude करते हैं that social class depends on a single factor, that means of production, the tools, factories, land, investment and capital used in producing wealth. Basically Marx in 1844 1964 तक Marx and Engels in 1848 to 1967 Marx argue करेंगे that distinctions people often make between themselves such as clothing, speech, education, relative salary are superficial matter that camouflage the only real significant dividing line. People जो हैं जो bourgeois either own the means of production or the proletariat work for those who do it. This is the only distinction that count for these two classes make up the modern society. इसी तरह से हमारी modern society work करती है. In short, according to Marx, people's relationship is to the means of productions determines and their class. ये हमारा recall हो गया, ये हमने पहले कर रखा है. Marx did not recognize that other groups were part of industrial societies. यहाँ पे ये farmers and peasants की बात करेंगे again. और इसके Marx did not consider these groups like social class. However, for they lacked class consensus, a common identity based on their position in the means of production. ठीक है, and they did not see themselves as exploited workers whose plight could be solved only by collective action. Consequently, Marx though thought that these groups as an insignificant incoming workers revolution that would ओवरथ्रो कैपिटलिज्म. तो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो तो अभी तक हुआ ही नहीं है. ठीक है, अगर हम देखते हैं लाइक मार्क्सियन व्यू है जो है एक्सटेंड करते हैं बाय द अदर स्कॉलर्स एज वेल एंड विजुअलाइज करते हैं द प्रेजेंस ऑफ सच स्ट्रेटा इन सोशल in every social institution, and this social stratification is perpetuated by elite capture. जो elite ने capture कर रखा है, high entry barrier है to the upper stratas, and some scholars like Wallerstein ये भी आगे बोले have extended the Marxian view in the pan global level and have contended that among countries also that there are haves and have not. among countries में भी हैव्स एंड हैव नॉट देखने को मिल जाते हैं. लाइक मार्क्स ऑल्सो हैव अ ऑप्टिमिस्टिक व्यू उनके होते हैं अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एंड ही सीज दैट क्लास स्ट्रगल्स लीडिंग टू अ रिवॉल्यूशन दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द क्लास इनइक्वालिटीज को लीड करेंगे. एंड मार्क्सिस्ट रिगार्ड दैट स्ट्रेटिफिकेशन एज अ मैकेनिज्म है वेयर बाय सम एक्सप्लॉइट अदर्स रेदर देन अ मीन्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ कलेक्टिव गोल. तो इनका अंडर क्लास का कॉन्सेप्ट रहेगा. तो ये कॉन्सेप्ट बताता है कि दैट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर अ न्यू लिबरल सोशलिस्ट एंड इज सिमिलर टू द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द अदर क्लासेस. तो ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज अ स्ट्रेटम विच इज अ रिजल्ट ऑफ अनइक्वल इकोनॉमिक एंड मिसप्लेस्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज है. ठीक है, तो ये सब एक बार रीड कर लेना. आई अपलोड दिस. ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक बार, दिस इज ओके पर हमने वेब पर नहीं किया है. एक सेकेंड, चलो इनको भी कर लेते हैं पहले. लाइक मॉस्का रनर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट व्यू इन 1896 इटालियन सोशोलॉजिस्ट है. ये आपके गेटानो मोस्का रोट एन इन्फ्लुएंशियल बुक एंटाइटल द रूलिंग क्लास. और ये ना बुक के नाम स्पेशली ना आप ना लिखना लर्न करना सीख जाओ. और ये कंटिन्यूसली रीड करोगे ना तो बुक के नाम याद हो जाते हैं. आगे चलते हैं. ही आर्ग्यूड दैट एवरी सोसाइटी विल बी स्ट्रेटिफाइड बाय पावर फॉर 3 मेन रीजन. कौन से 3 मेन रीजन? पहला रीजन बोलते हैं वो, अ सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट अनलेस इट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड दिस रिक्वायर पॉलिटिक्स of some sort or in order to coordinate people action and get society's work done. Political organization always result in inequalities of power, for it requires that some people take leadership position while others follow. It is a human nature to be self-centered. Therefore, people in position of power will use their position to bring greater rewards for
themselves. Therefore, you can say there is a no way around these facts of life, said Mosca. तो social stratification है is inevitable बोलते हैं, पहला बताते हैं, and every society will stratify itself along lines of power. Because of these, ruling class is well organized and enjoy easy communication among its relative few members. It is extremely difficult for the majority they govern to resist merger in 1987. ये लिखते हैं उसमें. Mosca आर्ग्यूमेंट जो इनके हैं, जो फॉरनर ऑफ द एक्सप्लेनेशन डेवलप्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट. द कॉन्फ्लिक्ट व्यू जो है, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट या फिर कंपटीशन ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज की वजह से, द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी शार्पली डिसएग्री करती है दैट द फंक्शनलेस पोजीशन दैट दे स्ट्रेस that conflict not function is the basis of social stratification. Sociologists हैं such as William Domhoff या C.W. Wright Mills in 1956 या फिर Irving Lewis Horace point out करेंगे that in every society, group struggle with one another to gain larger share of their society's limited resources. Whenever some group gain power, it uses that power to extract what it can from the group, and beneath it, it also uses the social institution to keep other group weak and itself in power. ये class conflict हमें तभी तो दिखाई देता है. तो class conflict is a key. क्या है? इट एक तरह की की टू अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फॉर सोसाइटी इज फार फ्रॉम बीइंग अ हारमोनियस सिस्टम, जहाँ पे जैसे मार्क्स ऑन क्लास, इनके व्यू डिफरेंट होते हैं. वेबर ऑन क्लास दे हैव डिफरेंट व्यूज. जैसे वेबर की अगर हम बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, तो मार्क्स के पास में दो ही क्लासेस, एक है हैव्स, दूसरी है हैव नॉट. वहीं वेबर की बात करते हैं, ही हैज 4 सच क्लासेस, जहाँ पे वेबर क्लास जो है, वेबर की जो क्लास है, इट नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट फ्रेमवर्क ऑफ द इंडिविजुअल पोजिशन इन कंटेक्स्ट ऑफ मार्केट ऑफ एक्सचेंज. वहीं मार्क्स की जो क्लास है, ही सेज दैट क्लास हैज टू बी अंडरस्टूड इन फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडिविजुअल पोजिशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन. तो मार्क्स क्या करते हैं? व्यू करते हैं द क्लास इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड नॉन ओनरशिप टू फोर्स्ड ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. वही वेबर बोलते हैं शीज ओनरशिप इज नॉट द not alone factor, as there is a value of skill as well as in the market. तो मार्केट के सोर्सेज हैं, वो भी उसको डिफाइन करते हैं. इंटरमीडिएट क्लासेस के जब बारे में मार्क्स बोलते हैं, लाइक इंटरमीडिएट क्लासेस विल पोलराइज ऑन कैपिटलिज्म, मैच्योर करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू वेबर के हिसाब से डिफरेंट होता है. देयर इज नो एविडेंस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस, एज ग्रीवेंसेस ऑफ मेंबर्स कैन बी वेंटेड आउट इन अ नंबर ऑफ वेज. लाइक फर्दर मिडिल क्लास will swell हो जाती है and not deplete the marks predicted due to the rise of bureaucratic organization, क्योंकि rise हो जाती है, क्योंकि इनकी जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी है वो पूरा उसी पे ड्वेल करती है. तो वेबर इसको एम्फसाइज करते हैं, क्लास आर नॉट कम्युनिटीज एंड दिस इज ऑल्सो नॉट द रीजन दैट दे आर अनलाइकली टू यूनाइट एज अ मार्क्स प्रेडिक्टेड. वो क्या है? यूनाइट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है. एंड ऑल रूलिंग ग्रुप from slave masters of modern elite develop an ideology to justify their position at the top. This ideology often seduce the oppressed into believing that their welfare depends upon the keeping the society stable. Consequently, the oppressed may support law against their own interest and even sacrifice their children and soldiers in war designed to enrich the bourgeois. आपने देखा है कभी लाइक एलीट क्लासेस से कोई, जैसे इंडिया की ही बात करते हैं, किसी भी नंबर 1 बिजनेसमैन के बेटे को आर्मी ज्वाइन करते हुए नहीं देखते हो. ऑल मेजॉरिटी फार्मर्स, रूरल एरिया से ही बच्चे आते हैं, ज़्यादातर 90%. नहीं, आर्मी इज़ अ प्राइड. ठीक है, हम इसकी प्राइड की वैल्यू करते हैं, बट एज ए सोशलॉजिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशलॉजी, आप ये सोच कर देखो कि वहाँ पर अंबानी के बच्चे क्यों नहीं हैं, या फिर मतलब ऑल वेल नोन टॉप पॉलिटिशियंस के बच्चे क्यों नहीं हैं. एक इकलौता ओम बिरला की बेटी उधर से मत कर देना, एक्सेप्ट 1 और नहीं है. ठीक है. तो मेजॉरिटी नहीं है. क्यों नहीं आते हैं? रीज़न क्या है? तो वो रीजंस पढ़ो.
consensus would overcome ideology हो जाएंगे, and the workers and their eye finally opened would throw off their oppressor. At first the struggle for the control of the means of production होता है might be converted, showing itself only in such act as industrial sabotage, but ultimately it would break out the open resistance. The revolt, though inevitable है and bloody, would be difficult, for the bourgeois control the police and the military and even education, where they implant false consensus in the workers' children. Okay, so hope so for today's. I think this is 34 minutes lecture. So next topic I'll upload in the evening, and we'll try to finish this chapter at least by today itself. I'll try to record at least 2 more lectures. Within the 2 more lectures it will be over. So till then, keep studying. Bye bye. And if you don't understand anywhere, let me know. Okay, bye bye, take care, and sorry for the disturbance of this call.